بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ رکوع 2 آیتوں پر مشتمل ہے، صرف اور صرف 2 آیتیں پورا رکوع ہے، اور پہلی جو آیت ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں ان آیتوں میں سب سے بڑی آیت، پورے صفحے میں ایک ہی آیت ہے، اور یہ آیت عبادات پر نہیں ہے، معاملات میں ہے، لین دین کے سلسلے میں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے ایک جملہ سنا ہوگا کبھی کسی عالم سے کہ ہدایہ ایک کتاب ہے جس کے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، ہدایہ، اور اس کے 4 پارٹس ہے، 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ ایسی چھوٹی کتابیں نہیں، قرآن کی یہ جیسا نظر آ رہی ہے ایسے نہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ، اور 4 جلدوں میں ہیں، اور 4 پارٹس میں ایک پارٹ جو ہے عبادت کے سلسلے میں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، طہارت، سب کچھ، پانی کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، کپڑوں کے، سب تمام چیزیں اس کے اندر موجود۔ باقی 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں، تو 3 پارٹس ہے، وہ پورے کے پورے معاملات کے سلسلے میں ہیں۔ تو ایک لطیف اشارہ یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ معاملات بہت اہم چیز ہے۔ معاملات چونکہ بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں، حقوق اللہ سے متعلق، حقوق العباد بندوں سے متعلق، اور جو حقوق بندوں سے متعلق رہتے ہیں اللہ بھی بیچ میں نہیں آتے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ تو لوگوں کی زندگیوں میں دین، ایمانیات اور عبادت سے دین آتا ہے، معاملات اور معاشرت سے دین چلے جاتا ہے۔ لین دین برابر نہیں ہے، معاشرت برابر نہیں ہے، اخلاق برابر نہیں ہے، تو جو دین، ایمانیات اور عبادت سے آیا تھا وہ کیا ہو رہا ہے؟ معاملات سے نکل رہا ہے، اخلاق سے نکل رہا ہے، معاشرت سے نکل رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت اتنی بڑی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری آیت، اس کے بعد ایک دوسری آیت ہے، اس میں بھی پورا کا پورا لین دین کے سلسلے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر آیا۔ سب سے پہلے کیا آیا ذکر؟ صدقہ خیرات کا، جو لوگوں کو دینے کے بعد کچھ پروفٹ کی نیت نہیں رہتی، اسے لینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رہتا، یہ برابر رحمت ہے، اللہ کے جانب سے اجر ہے۔ دوسرا ہے سود، ایک آدمی کو ہیلپ کرنے کے، ساتھ دینے کے 3 طریقے ہیں، اس میں سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ صدقہ دے کر، خیرات دے کر، ہدیہ دے کر، جس میں اس سے کوئی نفع کی امید نہیں، تو وہ بالکل رحمت ہے، اجر ہے، ثواب ہے، نیکی ہے، دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ دوسرا طریقہ سود کا، وہ بھی مدد ہی ہے لیکن سراسر ظلم ہے، اس کی تفصیل تو آپ لوگوں نے پورا سن لیا، وہ بھی ہیلپ کرنے کا طریقہ ہی ہے۔ ارے بھائی سود دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ کام، اس کا کام ہونے کے لیے دیتے ہیں، لیکن ہیلپ تو ہے لیکن ظلم ہے، گناہ ہے، اس کا خون چوسا جا رہا ہے، ایک طرف سے اسے دوائی بھی دی جا رہی ہے اور دوسرے طرف سے اس کو آگ سے داغا بھی جا رہا ہے، چرکے دیے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو سود پر مال لے کر آتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اب اس کا ذکر، قرض دے کر مدد کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قرض دے کر، جس میں کیا ہے؟ جو دیا ہے وہ واپس لینا بھی ہے۔ پہلے میں دیا ہو واپس لینا نہیں، کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے میں جتنا دیا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے، اور تیسرے میں جتنا دیا ہے اس سے اتنا لینا ہے۔ پہلے میں ثواب، نیکی، رحمت، اللہ کے جانب سے انعامات کا اعلان، دوسرے میں عذابات کا اعلان، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے جنگ کرنا، اور تیسری چیز ہے یہاں پر بھی معاملات صحیح ہو، جس میں جو دیا وہ لیا، تو اس میں بھی بندے کے لیے نیکیاں ہیں اور بندے کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ لیکن جب یہ قرض کی شکل میں نہیں رہے گا، قرض کے اصولوں سے، قرض کے ضوابط سے، قرض کے رولز سے نکل جائے گا، تو اب یہاں پر فساد آ سکتا ہے، جھگڑا آ سکتا ہے، یہاں دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، لڑائی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔
अरे भाई जो सदका दे दिया वो भूल जाएगा, वो याद नहीं रखता। और जो सूद का मामला तो है पूरा सामने आ गया, लेकिन कर्जा ऐसा है कि जो चीज़ दिया है क्या करना है, बाद में लेना भी है। तो लेकिन इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, इसमें कुछ लड़ाई होने के इम्कानात है, इसलिए क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, इसके उसूलों को पूरे तौर पर बयान कर रहे। चाहे वो लेन देन हो, मामला हो, बिजनेस हो, कर्जा हो, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करता है। पहली चीज़ देखिए, बैउद्दैन बिद्दैन। हमारा जो मामला होता है, 4 तरह के मामलात हो सकते हैं, बिजनेस, खरीदो फरोख्त, 4 तरह के। पहली चीज़ है कीमत भी कर्जे में, और समन और मबी बोलते हैं। मबी का मतलब है खरीदी जाने वाली चीज़, समन का मतलब है उसके बदले में दिया जाने वाला कैश भी देना अब नहीं है, और जो चीज़ खरीद रहे हैं वो भी अब मौजूद नहीं है। ऐसे ही बै हो रही है, ये बातिल है, इस्लाम में ऐसी कोई बै नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। समझ में आ रही बात? यानी कि अब मैं पैसे दे रहा हूँ, ना देने वाला मुझे चीज़ दे रहा है, सिर्फ मामला हो रहा है, सिर्फ बिजनेस हो रहा है। तो ये इस्लाम में ऐसी कोई बै नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसे कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, ये बातिल है। दूसरी चीज़ है बैउल ऐनी बिद्दैन, जिसमें क्या है, मबी नकद है। मुझे मोबाइल खरीदना है, मोबाइल में ले लिया, चीज़ में ले लिया, गाड़ी में ले लिया, यानी कि चीज़ मौजूद है, लेकिन रकम क्या कर रहा हूँ, बाद में दूंगा बोल रहा हूँ। दूसरी शक्ल जायज़ है। समझ में आ रही बात? दोनों में से एक चीज़ मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है लेकिन समन मौजूद नहीं है, ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बाद में दे तो खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ है बैउद्दैन बिल ऐन, कीमत दे दिया, चीज़ अभी नहीं है, चीज़ बाद में दे दूँ बोलता है। अब मैं मोबाइल ख़रीदना चाह रहा हूँ, 10,000 रुपये में दे दिया, मोबाइल 8 दिन के बाद दे दूँ, ये जायज़ है। इसी को कहते हैं शरीयत में बै सलम, इसे क्या बोलते हैं। ये यहाँ जो आयतें आई है, ये आयतें इसी की तफसील में आई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि ये आयत बै सलम के सिलसिले में नाज़िल हुई। लेकिन बै सलम में जब बंदा चीज़ को देखा भी नहीं, चीज़ उसके सामने है भी नहीं, लेकिन पैसे क्या कर रहा है, पहले ही दे रहा है, तो खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान उस चीज़ की कैरेक्टर, उस चीज़ के जो चीज़ें होती हैं, उसकी सिफात होते हैं, ऐसा बयान करना कि इसके दिल में कोई डाउट नहीं रहना। बिल्कुल देखो फ़ोन, ये आज के मिसाल के तौर पर कहा जाए 4G है, 5G है, 2 सिम है, 1 सिम है, फला फला फला, तो मालूम हो गया। गाड़ी है भाई, कितने गियर की है, कितने माइलेज जाती, कौन से मॉडल का है, सब चीज़ें बता दिया। गोया कि गाड़ी क्या है, उसके आंखों के सामने है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ताकि दोनों में क्या ना हो, झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, इसलिए ये चीज़ भी जायज़ है। चौथी चीज़ है बैउल ऐनी बिल ऐन, दोनों नकद, जैसा अब हम लोग खरीदते हैं, पैसे दिए चीज़ ले लिए, ये भी जायज़। पहली चीज़ एक ही नाजायज़ है। तो ये तमाम मामलात इस्लाम में बयान किया गया है, लेकिन जिसमें दो भी उधार हो जायज़ नहीं है। बै सलम जायज़, और कीमत नकद है, और मबी उधार है तो भी जायज़। तो ये तमाम चीज़ें बै के यहाँ शक्लें बयान की गई है। बहरहाल अब यहाँ पर देखिए उसी के उसूल को, कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज के क्या उसूल है और बै के क्या उसूल है, उसको बयान किया जाएगा तफसील के साथ, और उसको मैं तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ बयान करूँगा। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, ऐ ईमान वालों, जब तुम कोई उधार मामला करो मुतअय्यना मुद्दत तक, कोई उधार मामला, अब उधार क्या क्या हो सकता है, मबी उधार हो सकती है, यानी कि खरीदी जाने वाली चीज़ उधार हो सकती है, या देने वाली रकम उधार हो सकती है। तो कोई भी मामला उधार का हो रहा है तो अल्लाह सबसे पहले उसूल क्या बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं इला अजलिन मुसम्मा फक्तुबू, उसको लिख लिया करो। क्या बोल रहे हैं, लिख लिया करो। पिछले ज़माने में लिखने का सब रिवाज नहीं था, ज़ुबानी बात होती थी, मैंने बेचा तूने ख़रीदा, ख़त्म। लेकिन लिखने का जो तरीक़ा राइज हुआ है कुरान से हुआ है। आज भी जो मामलात होते हैं कैसे हो रहे, लिखत से हो रहे हैं ना। बॉन्ड पेपर जो आया है किसके ज़रिए से आया है, ये कुरान की तालीम है। तो अल्लाह ये बयान कर रहा है कि तुम्हारे दरमियान में कोई ऊंच नीच नहीं होना उधार मामले में, तो क्या करना है, लिख लो, सबसे पहला उसूल। और उसके बाद क्या उसूल है, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल,
अरे भाई कोई कौन बोले उन्हें लिखना नहीं, वो लिखने में जो माहिर है उन्हें लिखना मामला, क्योंकि जब कोई मामला उधार हो रहा है तो क्या लिखना क्या नहीं लिखना किसको मालूम रहता? जो इस मामले में तजुर्बेकार होता है। आप लोग देखे होंगे राइटर होते हैं, बस औकात जहाँ काम चलता रहता है वहाँ जाकर उसके हाथ में देते, वो लिख देता। कोई हम जितना भी ज्यादा पढ़ा हुआ लिखा हुआ हो उस मैटर को नहीं लिख सकता। तो इसलिए अल्लाह ही बता दिया पहले कि इस मामले को कौन लिखना है, लिखने वाला ही लिखना है। कैसे लिखना? इंसाफ के साथ लिखना। अरे उनको क्या भी मालूम नहीं होता, इसलिए अब क्या करें, कुछ ऊंच नीच करके लिख दिया, वो अनपढ़ है गरीब है, चलो उसके हक में जगह को कम कर दिया या पैसों को कम कर दिया, उसे मालूम होता नहीं। और बाद में जब पैसों का मामला आया, जब देने का मामला आया तो उसका हक तलफी हो रही है। ऐसा नहीं होना। तो लिखने वाला किसके डर से लिखना है? अल्लाह के डर से, पूरे इंसाफ के साथ लिखना। वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। बताते हैं जब लिखने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए, लिखने वाले को बुलाए, भाई हमारा मामला है लिखो आओ बोल के, तो उन्हें इनकार नहीं करना। जब कोई बुला रहा है मामले के लिए तो अल्लाह ने उसे इल्म दिया है, लिखने की सलाहियत दिया है, तो जब कोई आकर उसे बुला रहा है तो क्या करना है? देखो अल्लाह ताला इनके भी हुकूक बयान कर रहा, लिखने वाले के हुकूक को बयान कर रहा। तो मालूम हुआ जिसके पास जो सलाहियत है वो सलाहियत अपने पास रखने के लिए नहीं है, उससे उम्मत को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में सबसे बेहतर इंसान वो है जिससे लोगों को ज्यादा नफा होता हो। समझ में आ रहे? खुद के लिए जीना जानवरों की सिफत है, औरों के लिए जीना इंसान की सिफत है। यानी औरों के फायदे के लिए, सिर्फ मेरा फायदा, मेरा मफाद परस्त बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मफाद पर, यानी अपना देखो, दूसरे की जरूरत नहीं है। ये मुसलमान की सिफत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला बताते हैं अपनी अंदर जो सलाहियत, इल्म वाला है तो अपने इल्म से दूसरों को फायदा पहुंचाए। इसके अंदर दुनियावी तालीम है, दुनियावी तालीम से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अब इसके अंदर जो चीजें भी सलाहियत है, उन सलाहियतों का फायदा दूसरों को भी होना चाहिए। ये अल्लाह ताला बता, वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह, अल्लाह ने उसको जैसा सिखाया है वैसा ये क्या करना है? इनकार नहीं करना, लिखना है। अल्लाह ने उसको सिखाया है तो ये लिखना है। फल यक्तुब, फल चाहिए कि वो लिखे। अच्छा अब क्या है, कौन लिखना? ये मामला मैं पहले भी बता चुका हूं, अब अल्लाह खुद बयान कर रहे हैं। देखिए फरमाते हैं वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक, कौन लिखना? मामला कौन लिखना? मेरे और किसी के दरमियान में मामला हुआ, चीज को मैंने खरीदा, पैसे मैं बाद में देता हूं बोला, तो अल्लाह क्या बोल रहे मालूम? लिखना कौन है? मैं लिखना है। पैसे देने वाला, लेने वाला नहीं। आज दुनिया में मामला ऐसा हो गया, लेने वाला लिखा लेता, नहीं लिखा लेता, भाई मामला लिखो भाई, नहीं तो क्या होता है कि मालूम नहीं आगे। लेकिन अल्लाह क्या बोल रहे? अल्लाह क्या बोलते हैं? देने वाला लिखना। क्योंकि लिखे नहीं बोले तो क्या होता? सिर्फ जुबानी मैं जाको भी बोले कौन तो भी आको इन्हें मुझे 1 लाख रुपए देना, तो कौन तो मानते? अरे कौन तो मानते? क्या मेरी गवाही मेरे हक में मकबूल है, मैं खुद लिखे सु बात है, मैं खुद गवाही दिया हूं कि मेरे ऊपर 1 लाख रुपए उसे देना है, मेरे जिम्मे 1 लाख रुपए बाकी है उसे देना है, तो इसकी गवाही इसके जिम्मे समझी जाएगी और उसको मोतबर समझा जाएगा। इसलिए अल्लाह बोल रहे हैं जिसको देना है उन्हें लिखना। इसीलिए पिछले ज़माने में जो कर्ज लेता था वो लोगों के पास बोलते फिरता था कि मुझे उनको 1 लाख रुपए देना है, मुझे उनको 1000 दिरहम देना है, मुझे उनको 1 लाख दराहिम देना है। तो कर्ज लिया हुआ आदमी अपने कर्ज की तशहीर करता था, आज कर्ज देने वाले तशहीर कर रहे हैं कि भाई मुझे अब तक दिया नहीं 1 लाख रुपए लिया है, अब तक दिया नहीं 50,000 रुपए लिया है। तो क्यों मामला बिगड़ गया? तो कर्ज एक इबादत थी जिसके उसूल कुरान में बयान किए गए हैं, उस मामले को ऐसा बिगाड़ दिया गया कि क्यों बिगाड़ दिया गया? इसलिए कि उसूलों पर नहीं है। देतू बोले सो टाइम को देते नहीं, जिस तरीके से देतू बोलते हैं वैसा देते नहीं, कमी कर को देते, एक साथ देतू बोल को लिए, अब वो 5 कर को दिए तो उसे क्या होगा? खर्चा हो जाते, उसे फायदा नहीं होता। अब उन्हें सोच लेता नहीं अगली बार से किसी भी देना नहीं तो दिए तो क्या करते? लेट से देते, जरूरत पे नहीं देते, तो चलो अब एक बार से किसी भी देना नहीं, उसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान। तो इसीलिए अल्लाह ताला बयान करते हैं कि कौन लिखना है? जिसको जो लिया है, जिस पर हक है उन्हें लिखना। तो इसीलिए बोलने की वजह भी क्या थी मालूम? कर्जा है बोल को बोलने की वजह, अगर खुदा न खास्ता मैं इंतकाल कर जाऊं तो लोगों को मालूम भी हो जाए कि मेरे जिम्मे कर्ज है,
میرا بیٹا یا میرے رشتے دار یا میرے دوست یا جو میرے حق میں محسن ہے وہ ذمہ داری تو لے لے کہ بھائی اس کا قرضہ ہے میں ادا کروں گا. معلوم ہی نہیں تو کون ادا کریں گے؟ اب انہیں بولے گا بھائی مرے سو آدمی کے اوپر مجھے 1 لاکھ روپے قرضہ تھا, کون مانے گا آج کے زمانے میں؟ کوئی مانے گا؟ ارے کیا اسے اٹھا کو پوچھیں گے کیا نہیں دیتے؟ معلوم نہیں. بول کتنے کے معاملات ایسے ہوئے ہیں, لکھپتی ہے کروڑ پتی ہے, جا کو بولے تو بھی میت مرنے کے بعد تمہارے شوہر کے ذمے 1 لاکھ روپے میرے پاس لیے ہیں, ہے معلوم نہیں بولتے. واللہ عالم 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیے ہیں, لیکن میت سامنے ہے, ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا ڈر خوف نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب قرضہ لیتے ہیں کم سے کم بیوی کو تو بولنا, بچوں کو تو بھی بولنا, اپنے رشتہ داروں کو تو بولنا. اس لیے آگے بات آئے گی کیسے کیسے چیزیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے کون لکھنا جس پر حق ہے دینا ہے وہ لکھنا چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے أَفَرَأَيْتَ إِن قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے اگر میں میری جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں, میری جان اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے, میری سانسیں رک جائے, دل کی دھڑکنیں رک جائے, تو میری مغفرت ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نام الا الدین, لیکن تیرا قرضہ معاف نہیں ہوگا, قرضہ معاف نہیں ہوگا. شہید کا, اور شہید کا درجہ کیسا ہے؟ اس کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن دین باقی رہ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ شخص لکھے جس کے حق میں حق ہے, دینا ہے, ذمہ داری ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, ایسے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, جب لکھا رہا میں لکھا رہا ہوں, اب میں لکھا رہا ہوں, اسے معلوم نہیں جیسا میں لکھا رہا ہوں کیونکہ میرے ذمے ہے, 1 لاکھ روپے لے کو 50,000 کا لکھ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعد میں کب تو اب ان کو معلوم جو مجھے قرضہ دیا ہے اسے معلوم نہیں میں لکھا لیا ہوں, لیکن میں کتنا لکھا رہا ہوں؟ 50,000 لکھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولتے نہیں, اللہ سے ڈرو اس معاملے میں اور اس میں کچھ کمی نہ کرو, جتنا لیے ہیں جو لیے ہیں برابر لکھو, انصاف کے ساتھ لکھو. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ. اب دیکھیے بسا اوقات ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے, کوئی معاملہ ہوا کہ ذمہ داری ایسے شخص پر آئی جس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے. جب بعض لوگ رہتے نہیں, ذرا 50-50 رہتے, ذرا عقل مند بھی رہتے, ذرا دماغ ٹھیک بھی نہیں رہتا, ایسے بھی رہتے, لیکن ان کے ذمہ حق آ گیا ہے, یا پراپرٹی تقسیم ہونے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ان کے ذمہ دینے کا حق آ گیا, یا پھر وہ آدمی ضعیف ہے, یا وہ آدمی لکھنے پر طاقت نہیں رکھتا, عقل اتنی زیادہ نہیں ہے, بوڑھا ہو گیا, ضعیف ہو گیا, ایسا کمزور آدمی ہے, تو اس کا ذمہ دار لکھے گا انصاف کے ساتھ, اس کا ولی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے اس کا چاچا ہے یا اس کا تایا ہے, جو اس کے ذمے اس کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کا سرپرست ہوتا ہے, وہ لکھوائے. اللہ کے تعالیٰ کیا بول رہے, ایسے آدمی ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں بول رہے کیا؟ نہیں, اس کا ذمہ دار لکھا ہے, کیونکہ ایسا حق ہے معاف ہونے والا نہیں. تو ایسا معاملہ اگر ایسے لوگوں کے ذمے ہو جو بیوقوف ہو یا بچہ ہو یا اس کی عقل ٹھکانے پر نہ ہو یا کمزور ہو, بوڑھا ہو, لکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, تو ایسی صورت میں اس کا ذمہ دار لکھائے بالعدل. کیسا لکھنا ہے؟ انصاف کے ساتھ لکھنا, اس میں بھی کچھ کمی نہیں کرنا. اتنا سب ہونے کے باوجود دوسرا اصول اللہ بیان کر رہے ہیں, لکھنا کافی نہیں ہے. دوسرا سٹیج, اب لکھنا کافی نہیں ہے, کیونکہ کیا بولتے بھئی زبردستی کر کو لکھائے رہیں گے, ایک امکان ہے نہیں ہے, لکھا لیے ہوں گے. تو اللہ آگے کا سٹیج بیان کر رہے, کیا؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو. لکھنے کا ہونے کے بعد بھی وہ لکھنا صرف کافی نہیں ہے, اس پر اس معاملے میں اس لکھنے میں کتنے گواہ رہنا؟ 2 مرد حضرات کا گواہ رہنا. لیکن اس گواہی میں گنہگار, شرابی, کبابی ایسے لوگ نہیں ہونا, عادل ہونا, جو بالکل متشرع ہو, شریعت پر چلنے والے ہو, ان کی گواہی 4 لوگوں کے درمیان چلنے والی ہو, ورنہ گواہوں کو خرید لیا جاتا ہے آج کے زمانے میں. اسی لیے یہ شریعت کے معاملے میں ایسے ویسے لوگوں کی گواہی نہیں چلتی. معاملے میں متشرع رہنا, دین پر چلنے والے رہنا, جن کے دنوں میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف رہنا, ایسے 2 لوگوں کو تم کیا بنانا ہے؟ گواہ بنانا ہے. دیکھو یہ معاملہ ہے. اب بتاؤ, میں 1 لاکھ روپے لے کو 50,000 لکھے, دونوں راضی ہوتے؟
अरे राजी होते क्या? अरे उनको पूछते फिर, भाई इन्होंने 50,000 लिखा है, तुम्हारे पास 50,000 लिए क्या? तहकीक करते। जब उन्हें भी तस्दीक कर दिया, हाँ 50 लिए बोलो, तो इन्हों गवाह बनने तैयार होते, नहीं तो नहीं होते। तो अल्लाह देखो भटकने के, गुनाह में जाने के जो दरवाजे हैं उसे कैसा बंद करते हैं। लड़ाई होने के इम्कानात, दुश्मनी होने के इम्कानात, या झूठ बोलने के इम्कानात, अल्लाह ताला उसे क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन करते हैं आदमियों को। नहीं तुम लोग भटकना नहीं, आपस में झगड़ा नहीं करना, ये देन, ये कर्जा अच्छा मामला है, अच्छी चीज़ है, इस उसूल पर चलेगा तो, नहीं तो फिर क्या होता मालूम है, जैसे कि आज हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं फ़इन लम यकूना रजुलैन, दो ऐसे नेक लोग नहीं मिले तुम लोगों को गवाह रखने के लिए। मालूम है आजकल मिलते क्या ऐसे लोग जो बाकायदा जान भी चले जाए सच्चाई का साथ दे। है ऐसे लोग, पहले ज़माने में गुजरे हैं, अब भी है कि भाई सही बात बोलना, जान भी चले जाए लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, जान भी चले जाए सच नहीं बोलेंगे बोलते, ऐसा मामला है। हालांकि झूठ को झूठ समझने की सिफत आज अक्सर लोगों के अंदर ख़त्म हो गई, यानी मुसलमानों के अंदर ख़त्म हो गई। झूठ को गुनाह समझने की सिफत नहीं है। बैठे बैठे झूठ, उठे झूठ, बैठे झूठ, बीवी के सामने झूठ, बच्चों के सामने झूठ, असातिज़ा बच्चों के सामने झूठ। तो इस तरीके से झूठ को गुनाह समझने की सिफत ख़त्म हो गई। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे नेक दो मर्द तुमको ना मिले तो क्या करना? फरजुलुन वम्रअतान, एक मर्द को रख लो और दो औरतों को रख लो, दो नेक सालिहा औरतें, एक मर्द के मुकाबले में दो औरतें और एक मर्द, तो क्या हो गया? सिर्फ 4 औरतें नहीं चलती, फिर 2 औरतें एक मर्द तो होना जरूरी, या 2 मर्द है तो भी चलता, एक मर्द और 2 औरतें, या फिर 2 मर्द, इस तरीके से बना लो। अच्छा 2 औरतें क्यों? मिम्मन तर्ज़ौना मिनश्शुहदा, गवाहों में से तुमको जो पसंद हो ऐसे 2 औरतें और एक मर्द। अंतजिल्ला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा, 2 कई को होना, एक औरत भूल गई तो दूसरी औरत उसको याद दिला देगी। अरे कैसा भूलती है औरतें तो आजकल के बहुत फॉरवर्ड है, मर्दों से भी ज़्यादा आगे है, उन्होंने कैसा भूल जाती। तो ये उसूल ऐसे औरतों पर है जो औरतें अपने शोहर की और अपने बच्चों की और अपने घरों की जिम्मेदारी में लगी रहती हैं। दुनिया के कारोबारों में लगने वाली औरतों के लिए नहीं है ये, समझ रही बात? ऐसी औरतें जो बच्चों की तरबियत के पीछे पड़ी हो, ऐसी औरतें जो शोहर की खिदमत के पीछे पड़ी हो, ऐसी औरतें जो अपने घर को दीनदार बनाने के पीछे पड़ी हो, ऐसी औरतें भूल सकती है। तो इसलिए एक औरत भूल जाए तो दूसरी औरत क्या करे? उसको याद दिला सके। तो मालूम हुआ आज मामलात औरतें नहीं भूल सकती। तो क्यों नहीं भूलती? उनका मामला घर में चलने के बजाय बाहर के मामलात में ज़्यादा चल रहा, और वो घर का मामला बिगड़ा हुआ होगा जिस घर का इनकम औरतों के हाथ में होता है। इनकम आने के बाद उनके हाथ में चला जाता, पूरा चलाने का जो पावर है किसके? होम मिनिस्टर किसके हाथ में रहता? होम मिनिस्टर के हाथ में अगर घर चलाना है तो वो घर आफियत में नहीं रहेगा। ये तजुर्बेकारों का मक़ौला है, कुरान की आयत नहीं है, हदीस नहीं है। मिम्मन तर्ज़ौना मिनश्शुहदा अन तज़िला इहदाहुमा फतुज़क्किरा इहदाहुमल उखरा वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ। फरमाते हैं अब गवाह बन गए, नेक लोग होंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। क्या? जब भी गवाही के लिए बुलाएंगे तो गवाह इनकार नहीं करना। भाई कोर्ट में बुलाए तो क्या करना है? नो आना, मामला चल रहा, पंचायत चल रही, बुलाए तो आना। तो ये तमाम चीज़ें किन के बारे में बोल रहे अल्लाह? अब गवाहों के बारे में बोल रहे, पहले देने वालों के बारे। तो जिन जिन का तस्कीरा आ रहा अल्लाह उन पर उसूल डालते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग किन किन का तस्कीरा आ रहा है, अल्लाह उनको उनके उसूल बताते जा रहे हैं। तो अब यहाँ शुहदा गवाहों का तस्कीरा है तो अल्लाह ताला बोल रहे देखो गवाह बनना 21 नहीं, जब भी उन्हें बुलाएंगे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। फतुज़क्की जाना पड़ेगा। इज़ा मा दुउ वला तसअमू। अच्छा आगे एक दूसरा बयान करे, क्या? वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरन इला अजली। जो मामला भी मुद्दत के साथ हो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बोलको को सद तो भी मामला हुआ हो, तो छोटा हो या बड़ा हो उस मामले को लिखने में सुस्ती ना करो। जो मामला 2-3 उधार जो मियाद के साथ हो तो अब ये क्या करना? उसे लिखना ज़रूरी है। मियाद के साथ हो, मुतय्यना हो। तो इसीलिए आजकल देखे होंगे आप लोग कर्जा देते, अध्यक्ष दे तुम लोग को लेते, तो ये क्या हुआ? गैर मुतय्यना हुआ।
بھائی کب دے توں معلوم نہیں. تو ادھار ہے بولے تو مہینہ بھی ڈیٹ بھی وقت بھی طے ہونا ضروری. جب کیا ہوتا جھگڑے نہیں ہوتے. ورنہ کیا ہوتا میں دے توں بولا تھا دے توں, کیا بولتے میں دے توں بولا تھا دے توں, میں کیا نہیں دے توں بول رہا ہوں, کب دے توں گا تو نہیں بولا تھا دے توں. اب کیا بھی کر سکتا آدمی. تو اس لیے کیا بول رہے ہیں طے کرو, جب ادھار کوئی معاملہ ہو تو اسے طے کرو کب دوں گا کب نہیں. ولا تسأموا سستی نہ کرو کاہلی نہ کرو, ان تکتبوہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الی اجلی جو مدت کے ساتھ متعین ہو تو اسے لکھنا ضروری ہے. کیوں لکھنا ضروری ہے؟ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا ذریعہ ہے اور گواہی کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے. انصاف کا بھی ذریعہ, گواہی کو قائم رکھنے کا بھی ذریعہ ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور اس کے قریب ہے کہ تم اس کو بھول نہ سکو. بسا اوقات کیا ہوتا آدمی معاملہ کر لیا, نیک لوگ بھی ہوتے بھول جاتے, تو یہ چیزیں کر لینے سے بھولی ہوئی چیز بھی کیا جاتی, گواہ ہونے سے لکھنے سے بھول ہونے کی جو امکانات ہے اس غلطی سے دونوں بچ جائیں گے. وہ بتاتے اللہ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا کہ بھولنے سے بھی دور ہے یہ چیز, بھولنے کے جو غلطی ہے اس سے بھی تم بچ جاؤ گے. اسی لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ معاملات کو اس طریقے سے کرے, لکھنا ہے گواہ بنانا ہے. اب آگے اللہ بیان کرتے ہیں ہمارا اور تمہارا کیسا. ذالکم اقسط, یہ نہیں اللہ تعالی الا ان تکون تجارتا حاضرتا. اچھا اگر نقد لین دین ہو, مبی جیسے بتایا نا دینا بھی لینا بھی فوراً ہو رہا, جیسے آج کل ہمارا ہوتا ایسا ہو رہا, تدیرونہا بینکم جو تمہارے درمیان لین دین نقد ہو, فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا, لیکن جب تمہارا معاملہ نقد ہو رہا ہے, قیمت بھی تبھی دی جا رہی ہے, چیز بھی تبھی دی جا رہی ہے, لکھنا ضروری نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ, لیکن جب بھی تم بیچو تو گواہ تو بنا لو, جب بھی بیچو تو کیا کرو گواہ بنا لو. یہاں پر ایک مسئلہ ہے جو 15-20 دن پہلے پیش آیا تھا, اس کو میں بیان کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا. آج کل ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں بیچنا اور خریدنا, پہلے مسئلہ سمجھ لو بات سمجھ میں آئے گی. ایک آدمی ہے آٹو ہے اس کا آٹو, وہ آٹو کیا فروخت کر دیا ایک آدمی کو, اپنے ہی نام پر ہے بھی, وہ انہیں ٹرانسفر نہیں کرا لیا. گورنمنٹ کے جانب سے جو آٹو والوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے وہ وظیفہ آ رہا ہے, تو میں ایک آدمی کو آٹو بیچا تو اب وظیفہ آ رہا ہے, وہ وظیفہ میں لیتا ہوں. اب وہ وظیفہ لے رہا ہے تو میں ایک مفتی صاحب سے سوال کیا کیا ایسا وظیفہ آ رہا, میں اسے ٹرانسفر کرا لو, بولا اپنے نام پر کر لو, بولا کر لیتا نہیں ہے, رجسٹریشن کر لیتا نہیں ہے, اپنے نام پر کر لیتا نہیں ہے, اور میرے اکاؤنٹ میں کیا ہو رہے پیسے آپ کو گرتے ہیں, تو وہ پیسے کھانا میرے لیے کیسا ہے. تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں بولو, پھر جب گاڑی تمہارے نام پر ہے تو, جب گاڑی تمہارے نام پر ہے تو تمہیں کھا سکتے, تمہارا ہے. تو جب یہ سوال میرے پاس آیا تو جب میں ان کو بتایا تو انہوں بھی حیران پریشان ہو گئے, ارے ایسا ہے کیا آپ لوگ. یہ رجسٹر کرنا ٹرانسفر کرنا یہ سب حکومت کے قوانین ہے. شریعت میں بیچا تو خریدا تو معاملہ ہو گیا. ارے بات سمجھ رہے, کوتمبیر خریدنے گئے تو رجسٹر کرا لیتے کیا ہم لوگ, بھائی کوتمبیر لے کو یہ 2 روپے کی کوتمبیر میں لیا, رجسٹر کرا لیتے کیا, تو معاملہ ہوا نہیں ہوا. تو اس طریقے سے میں بیچا تو انہیں خریدا, بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بولنے کی بھی ضرورت نہیں. اب لین دین کا معاملہ کا مطلب کیا ہے, لیے دیے ختم, معاملہ ہو گیا. تو اب انہیں مالک بن گیا شریعت کی نگاہ میں آٹو کا, تو اب اس کا حقدار کون ہوا. اور انہیں کیا کرتے تھے پہلے, وہ پیسے آتے بول کو کچھ پیسے اسے دے کو کچھ پیسے استعمال کرتے تھے. تو میں بولا یہ بھی جائز نہیں ہے, تو پورے کے پورے پیسے کسے دینا ہے, اسی کو دینا ہے, اسی کا حق ہے کیونکہ وہ مالک بن گیا. تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں, یہ لکھنا, یہ رجسٹر کرانا, یہ ٹرانسفر کرا لینا, یہ دنیاوی معاملات ہے. لیکن شریعت میں یہ چیزیں ضروری نہیں. جب میں بیچا تو خریدا تو معاملہ بن گیا. اب وہ پیسے جو آ رہے ہیں وہ اس کا حق ہے, اسے دینا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی لین دین نقد بھی ہو, زمین خریدی جا رہی, گھر خریدے جا رہا, سونا چاندی تبادلہ کیا جا رہا, تو نقد ہو تو بھی کیا کرنا ہے, گواہ بنا لو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیونکہ اس میں بھی کچھ جھگڑا وغیرہ ہونے کے امکانات ہے. وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
लिखने वाले को भी तकलीफ नहीं देना, गवाहों को भी तकलीफ नहीं देना। लिखने वालों को तकलीफ नहीं देने का क्या मतलब? बेचारा उतना बड़ा मजमून वक्त निकाल को लिख को दिया, उन्हें पैसे उसकी फीस पूछे तो देते नहीं है, उसका हक है फीस लेना, उसका हक है देना है। अगर कम कर को देंगे या नहीं देंगे तो जुल्म है। शोहदा पर क्या क्या है, कोर्ट में कब कब बुला रही कि जब बुलाते हैं उनको आओ बोल को आते हैं, लेकिन आने जाने का किराया नहीं दे रहे उनको। अरे भाई किसके लिए आ रहे हो? उन्होंने हमारे काम के लिए आ रहे, तो किराया कौन देना? जिस काम के लिए गवाह आ रहे हैं उनको भी उसका किराया देना, आने जाने का किराया देना। ये अल्लाह ताला बयान करते हैं। व इन तफ़अलू फ़इन्नहु फ़ुसूक़ुम बिकुम, फरमाते हैं अगर तुम ऐसा करोगे, यानी लिखने वाले को उसकी उजरत नहीं दोगे और गवाह आना जाना कर रहे हैं लेकिन उनको किराया नहीं दे रहे, तो तुम्हारे जानिब से ये गुनाह है। उन पर क्या कर रहे? जुल्म कर, काम ले रहे, बदला नहीं दे रहे। वत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुमको मामला सिखलाता है कि कैसे करना। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। कि भाई क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं कर रहे, अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। इसलिए हर एक का हक, जब हम लोग किसी से कुछ फायदा ले रहे तो उसका बदला दे देना चाहिए। आगे आखिर अब एक आयत हो गई। अब देखिए जितना भी मामला आया, अब इसमें किसी भी जगह पर आपने देखा भाई नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, कुछ कोई बात देखे, पूरी की पूरी आयत मामलात के सिलसिले में है। गवाह हो तो गवाह पर क्या जिम्मेदारी है, लिखने वाला है तो लिखने वाले पर क्या जिम्मेदारी है, और देने वाला कर्जा है तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, और जो चीज़ें आगे आती जा रही हैं उनके ऊपर उसूल बयान करते करते जा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। अब आखिरी आयत क्या है? सफ़र में है। यहाँ पर भी एक उसूल, एक मसला गुज़िश्ता हफ्ता भी पूछा गया, बोला गया, वो भी यहाँ पर आएगा, वो भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। व इन कुंतुम अला सफरिन, अब तुम लोग किसी जगह सफर में हो, जर्नी कर रहे हैं, वहां पर कोई चीज खरीदने का मौका आया, वलम तजिदु कातिबन, और वहां लिखने वाला कोई नहीं मिला, कोई लिखने वाला नहीं है, अब क्या करना? तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला कहां पर भी हो, चाहे अपने इलाके में हो, सफर में हो, कहां पर भी कोई मामला हो गया, लिखने वाले नहीं है, तो क्या करना? फरिहान मकबूजा, तो ऐसी सूरत में भरोसे के लिए कोई चीज रहन के लिए दे दो, लीस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोना दिए, पैसा लिए, सोना दिए, कोई और चीज़ ले ले इस्तेमाल के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं? लीस। इसे रहन कहते हैं शरीयत में, रहन के तौर पर दे दो। अब मैं एक आदमी को 1 लाख रुपए दिया, उन्हें मुझे रहन के तौर पर, गारंटी के तौर पर 2 व्हीलर गाड़ी दिया, तो उस 2 व्हीलर गाड़ी को बगैर इस्तेमाल के सिर्फ रख लेना, उन्हें पैसे दिए तक रख लेना मेरे लिए जायज़ है, यूज़ करना जायज़ नहीं है। पिछले ज़माने में क्या होता था, कर्जा लेने के बाद कोई बकरी दे देता था, कोई बकरी देता था, कोई गाय देता था, देकर दराहिम लेकर आता था। उसका दूध पीना भी जायज़ नहीं है। अगर उसका दूध आया तो क्या करना? तो उसका दूध आया तो बेचकर उसकी कीमत फिर किसे देना? जो कर्जा लेकर गया है उसी को देना। उन्हें गारंटी के लिए दिया है, एक मुद्दत रहती, 3 महीने में मैं तुम्हारा कर्जा नहीं दिया तो ये चीज़ तुम्हारी, उसके बाद उसका दूध हम लोगों को जायज़ होता। तो ऐसे ही 2 व्हीलर गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, सोना हो, चांदी हो, जेवरात दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए, उन्होंने जेवरात ला को रखे। अब हमारे घर वाले, हमारी बेटी वो जेवरात को पहनकर शादी को जा रही है, जायज़ नहीं है, इस्तेमाल जायज़ नहीं, नफ़ा जायज़ नहीं। इस मसले को सामने रखकर समझिए, पैसों को ब्याज नहीं, घर को भाड़ा नहीं, कई को जायज़ नहीं है, इस वास्ते जायज़ नहीं। पैसे को ब्याज नहीं है, ये पैसे कर्जा बन गए, अब वो घर लीस बन गया, रहन बन गया। अब मेरा रहन में रहना, यानी कि रहन की चीज़ क्या है? घर। मेरा घर में रहना, घर से फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हो रहा है, तो उन्हें जो गारंटी के लिए जो चीज़ मुझे दिया है उससे मैं क्या कर रहा हूँ? फायदा उठा रहा हूं, तो इसलिए ये चीज जायज नहीं है। ये उसूल समझ में आ गया तो ये कहीं को जायज नहीं है, बात समझ में आ जाएगी। समझ में आई बात? तो कुरान में भी इसका जिक्र है, कातिबुन फरिहान मकबूजा फ़इन अमीना बाज़ुकुम बाज़न, तो ऐसा सफ़र में हो तो कोई चीज़ गारंटी के लिए, लीज के लिए या रहन के तौर पर उसे दे दो, तो वो क्या हो जाएगा? गारंटी के तौर पर हो जाएगा। फ़इन अमीना बाज़ुकुम बाज़न, और अगर दोनों ऐसे भरोसामंद लोग हैं कि इसको उस पर भी शक नहीं है, उसको उस पर भी शक नहीं है, दोनों भरोसेमंद लोग हैं, फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानता, तो ऐसी सूरत में क्या है कि जिस अमानतदार अपनी अमानत को पूरे तौर पर अदा करे,
समझ में आ रही बात? भरोसा कर लिए भाई, नो ऐसा नहीं कर सकते बोल को, तो अल्लाह ताला बोल रहे भरोसेमंद लोगों के दरमियान भी मामला हो जाए तो देने वाला बराबर से दे, धोखा ना दे। देखिए सब लोग, अक्सर लोग नमाजी हाजी सब रहते हैं, लेकिन मामलात में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह क्या बोल रहे हैं? फ़इन अमीना बाज़ुकुम बाज़ा, इन्हें इस पर पूरा भरोसा है, इसको इस पर पूरा भरोसा है, तो भी अमानतदार अपने अमानत को पूरे तौर पर अदा करे। अरे दोनों भरोसेमंद है तो क्या भी नहीं लो बोल रहा नहीं अल्लाह ताला, नहीं, फिर भी जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो पूरे तौर पर अदा करे। वल यत्तकिल्लाह रब्बह, अपने रब को डरते रहे, इसमें फेल नहीं होना। वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही को कभी ना छुपाओ। मामला हो गया, छुपा रहे, इतना है कुछ कमी बेशी कर रहे, गलती कर रहे, गवाही नहीं दे रहे, या फिर लिए हुए मामले में कुछ कमी बेशी कर दिए, इतना बोल को इतना बोलते हैं, ऐसा कुछ हो गया। वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कोई हकीकत को छुपाता है, गवाही को छुपाता है, कमी बेशी करता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसका दिल गुनहगार होता है। किसका दिल? ऐसा करने वाले का क्या 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 गुनहगार होता है? दिल। ये ट्रांसफार्मर है, ये इसके दिल में पहले ख्याल आता सो भाई अब क्या, तो ये एक झूठ बोले तो इतना नफ़ा है ना मुझे, ये एक चीज़ लिख डाले तो मुझे इतना नफ़ा होता ना। कौन बोलता है पहले? ये दिल बोलता है। तो अल्लाह ताला बोलते हैं फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, उसका दिल गुनहगार होगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को जानने वाला है। तो इसीलिए दिल जब बोलता है तो आज़ा काम करते हैं। अब इन्हें दिल फैसला कर लिया, अब जुबान बोलते नहीं नहीं तुम्हें कहाँ दिए, इतना ना दिए, सो जगह देखे रहेंगे आप लोग, जब घर बनने का आता ये जगह मेरी है, 2 फीट तक मेरी, ये कहीं को होता सो दिल में आ गया, नहीं एक झूठ बोल दिए तो मुझे 4 फीट तक की जगह, इतनी लंबी जगह आ जाती, कितने की झगड़े होते। हालांकि पूरे पेपर्स है, सब है, होने के बावजूद भी लोग झगड़ा करते हैं। जो लोग डर कर जिंदगी गुजारने वाले होते भाई झगड़े के नको बोलते, गई तो गई जगह छोड़ डालते। इसे अल्लाह के नबी फरमाया जो आदमी किसी आदमी की जगह एक बालिश्त जगह भी नाहक ले लेगा, 7 ज़मीन तक जितनी ज़मीन होगी वो पूरी की पूरी ज़मीन कल अल्लाह ताला उसके गर्दन में तोक बना कर डालेंगे। क्या हाल होगा? तो ये जगहों की, मसाजिद की जगहों को छोड़ देनी लोग, कितनी की मस्जिदों की जगह देखें, लेकिन दावत की मेहनत की बरकत से अल्लाह ताला लोगों के दिलों में एक बात डाला है। हमारे गांव का भी एक वाक़या है, कितनी की जगह कब्जा कर लिए लोग। तो जब वो मामला आया, लोग पूरे जो नौजवान थे उनसे भी क्या बोले, मार को निकालेंगे इन सबको भी बोले, क्या ज़रूरत, हमारी जगह है, पेपर है, सब भी है, कानून हम लोग जीत सकते, सब कर सकते। बोलते जब वहाँ के जो बड़े जिम्मेदार थे उन्होंने बोले नको उन्होंने रहने दो, आगे चल को इंशाअल्लाह उन्होंने हमारे मस्जिद को संभालने वाले बनते हैं। बोले छोड़े, अब भी उन्होंने, लेकिन अभी वो ज़माना आया नहीं, इंशाअल्लाह आएगा। तो ऐसा कर को छोड़ना पड़ता बसा औकात। लेकिन जानने के बावजूद, इल्म रखने के बावजूद भी जो लोग कब्जा करेंगे वो जहालत है और वो जुल्म है, ऐसा नहीं करना। ये अल्लाह ताला यहाँ बयान करते हैं। बहरहाल यहाँ तक रुकू ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद देखिए जो मामला आने वाला है, यहाँ अल्लाह ताला बयान किया ना, जो आदमी ऐसा करेगा उसका क्या, दिल गुनहगार है। क्या बात है? दिल गुनहगार है। तो दिल के क्या क्या गुनाह हैं, दिल में आने वाले ख्यालात, किस किस ख्याल पर गुनाह है, किस ख्याल पर गुनाह नहीं है, कौन सी सोच पर गुनाह है, कौन सी सोच पर गुनाह नहीं है, दिल भी कैसा गुनाह कर सकता है, ये तमाम चीज़ों का तज़किरा आगे आएगा। सहाबा डर गए थे, ये आयत आज तक, क्या अल्लाह के नबी, क्या बात है, हमारे दिलों में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जिस ख्याल को बयान करना भी हम लोग पसंद नहीं करते। तो जब ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह इसका हुक्म बयान किया, वो क्या हुक्म है, वो क्या गुनाह है, कौन से माफ़ है, किसका मुआख़ज़ा होगा, इंशाअल्लाह अगले पीर को तफसील से बयान किया जाएगा। और इंशाअल्लाह सूरह बकरा भी अगले पीर को ख़त्म होगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।